I think it's okay now, right? Thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much. So we're beginning the induction meeting today. I would once again like to welcome all our students of PG diploma programs who have taken admission for July 2025 cycle. I am Dr. Siddharth Mukherjee, Senior Regional Director, IGNOU RC Noida, and I welcome my colleague Dr. Anjana, Deputy Director at IGNOU RC Noida, my colleague Shri Sanjay Kumarji, Executive Data Processing, and also my colleague Shri Satyendra Kushwaha who is Assistant Executive Data Processing, who are with us today, who will be giving you, all of us will try to give you important information, important details, which we hope will be helpful to you, to all of you who have logged in today in this induction meeting in studying the program in which you have taken admission, and also in your academic journey at IGNOU, that is Indira Gandhi National Open University. Indira Gandhi National Open University. Without further delay, I know I'll not go much into the introduction because you've taken admission, so we presume that you know about this university. But still, I would just like to tell you that this is a central university with a national mandate, and we have our pan-India presence. We also have our presence in the countries abroad, in some countries abroad, in Africa, and also in the Middle East. I would like to tell you that our university has its own headquarters, own campus at Maidangadi, that is at Saket, near Saket in Delhi. Apart from that, we also have the second layer, that is a regional center, the second point of contact for all of you. That is a regional center. For you, it is Regional Center Noida. We are located at plot number 88, Tusiana Village, Greater Noida, Knowledge Park 5. Apart from this, we also have three regional centers. Rather, IGNOU has three regional centers in Delhi NCR. That is Delhi 1, which is at Mohan Cooperative Industrial Estate near Sarita Vihar, Mathura Road. The second regional center is near ITU, and that is on the near the Indraprasth power station. And the third regional center, RC Delhi 3, it is at Narayana. So we have 4 regional centers in Delhi NCR. Apart from that, we also have 53 other regional centers all across the country in different states. Some of them are in the state capitals, some of them are in prominent cities of the state. Apart from this, the third point of contact for all of you are the study centers. The study centers, as you all perhaps might be knowing, because you have opted for these different study centers under the jurisdiction of RC Noida. These study centers are located at the government colleges, government aided colleges, and government university affiliated colleges. So they are the learner support centers. Why we call them learner support centers? Because learner, that means it is for the students. Support, that is their function. Primary function is to provide support to you learners, and they are centers, that means they are centers of knowledge, centers of learning. So these, we have a whole network of learner support centers under RC Noida, and they are located, they are spread across the western UP and also in East District of Delhi, that is in Vasundhara Enclave. So that is basically the jurisdiction. And if you talk of these districts, well, you all must be knowing because some of you might have logged in from these different districts. We Agra, Mathura, then we have Meerut, Modinagar, then Saharanpur, Muzaffarnagar. Then we have also in very far off places like Sambhal, then Bijnor,
And even now, again, Rampur is getting revived. So we have it in Rampur also. So there are a number of study centers for different purposes. Like, for example, when I say different purpose, like I would like to specially mention, we have Chaudhry Chotu Ram College, Agriculture College, which is there in Muzaffarnagar, that is specially for agriculture programs. Similarly, we have one study center in GIMS, Greater Noida, that is for health science programs. So this way, we have different kinds of study centers who are associated with us and who are actively involved in providing support services, learner support services to all the students. And you must have seen, if you have downloaded your iCards, you must have seen that or if you look into your registration status now, online registration status in the IGNOU website, you would see that your study center is already listed there. So you would know where exactly you have to go for all your learning purposes. That forms the learning environment basically for the students. In this induction meeting, as we say induction basically means introduction. So we are here to introduce the system to you. We are here to give you brief, summarized information about how you're going to go about it, because I think most of you might be all belonging to the conventional system of face-to-face learning, whereas in IGNOU, as you all know, we are following the open and distance learning method. So it is at times, you can also call it partially blended, because some of the components are offered through online mode and some of the components are face-to-face. So that's why we can call it, it's not completely blended, it's not completely hybrid, but yes, it is a combination of face-to-face and online components. So we today, as I said, we're going to provide you introduction. We are going to basically chart a path for you. We will show you the path which you will have to follow in order to successfully complete your academic, educational journey with all of us. I will just tell you how we're going to go about in the next 1 hour. I have just given you a very, 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 very brief introduction. Then my colleague here, Sanjay ji, he is going to tell you what exactly lies ahead of you next after taking admission. What do you have to do? Then my other colleague, Satyendra Kushwaha ji, he is going to give you a brief presentation on all the digital resources that are being provided by the university for the benefit of the students. So he'll give a demo of all those online resources. And then finally, my colleague, Dr. Anjana, she will give you idea, or let's say an overall picture of some of the most important aspects of the learning journey, which you have to keep in mind. And then also you will see time to time as we move on next 1 hour, she will be putting important URLs, important links of all the digital resources that Satyendra ji is going to give a demo about. She is going to start sharing those URLs in the chat box, which even I am going to contribute. Both of us are going to do that. And apart from that, she will share with us some of the most important points that we have to keep in mind while studying in an open and distance learning method, that is in ODL environment. So without further delay, I request my colleague Sanjay ji to please inform, or rather apprise the students about what is the next step. Sanjay ji, students को बताइए, अब जब उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, अब उनका अगला स्टेप क्या होगा, उनको आगे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, ताकि वो टाइमली अपना कोर्स या प्रोग्राम जो वो हमारे साथ कर रहे हैं उसके बारे में वो टाइमली कंप्लीट कर सके. इससे पहले आई वुड आल्सो लाइक टू रिक्वेस्ट अंजना, व्हेन यू स्पीक, कैन यू प्लीज टेल द स्टूडेंट्स, like, in common parlance, course
normal people from the conventional system, they know course. Whereas in IGNOU, we call it, in our nomenclature, we call it as program. Course is basically a subject. So these particular, then we, in common parlance, we call it timetable, whereas we call it here schedule, date sheet. So can you just explain to them later on? These Surely ma'am, I'll do that. Okay. So Sanjay ji, over to you. आप प्लीज स्टूडेंट्स को गाइड कर दीजिए. जी मैम. सभी को मेरा नमस्कार. अभी मैडम ने यूनिवर्सिटी के बारे में, रीजन सेंटर के बारे में और जो कोर्स आप यहाँ पे चल रहे हैं उनके बारे में आपको बताया. हम जैसे कि आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा हो चुका है और आपको जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आपका, उसमें एक आपको कंफर्मेशन मेल जा चुकी है. तो उसमें कुछ लिंक्स दिए गए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. तो हम ये मानते हैं कि आपने कुछ ने वो पूरे कर लिए होंगे. जो भी जैसे भी उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से आपने उसमें उनके हिसाब से पूरा किया होगा. लेकिन हो सकता है कुछ को कोई एरर आ रही हो या कुछ को दिक्कत आई हो, वो ना कर पाए हो, तो मैं आपको उसमें थोड़ा बताऊंगा और जिससे कि आप उसको अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएं. क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन तो आपने एडमिशन लेने के लिए किया, लेकिन अब एक रजिस्ट्रेशन आपको और करना है, जिसके लिए आपको अब आगे सारी इंफॉर्मेशन उसी लिंक से या उसी यूजर आईडी पासवर्ड से मिलेगी. तो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ. ये जैसे सबसे पहले आपने एडमिशन लेने के लिए हमारी इग्नू की वेबसाइट पे आप गए होंगे और इसमें कि ये यहाँ पर स्टूडेंट सर्विसेज है जो स्टूडेंट्स के ही लिए है. तो ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक ऑप्शन खुलता है जिसमें कि एडमिशन एक पार्ट है. इसमें इन सभी में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं. तो इसमें एक एडमिशन है. सबसे पहले आपने यही यूज किया होगा. तो ये एडमिशन पे मैं गया हूँ. तो आपने अप्लाई ओडीएल प्रोग्राम एक यूज किया होगा. जो ओडीएल प्रोग्राम में जिसने एडमिशन लिया है, एक नीचे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए है लिंक है. तो ये तो आपने इसको ये प्रोसेस तो आपने पूरा कर लिया है. तो अब मैं आता हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन एक करना है. वो कैसे करना है, अगर आपने नहीं किया है तो वो मैं आपको बताता हूँ. तो ये एक री रजिस्ट्रेशन है. तो आप इस पे जाएंगे तो ये एक विंडो यहाँ पर खुलेगी. कुछ एरर आ गया क्या? हाँ, ये एक विंडो यहाँ पे खुलेगी और इस पे आप क्लिक करके आगे जाएंगे. स्लो है नेटवर्क. आगे नहीं जा रहा है. हाँ, अभी देखते हैं. हाँ, ये विंडो खुलेगी. जैसे कि आपको कंफर्मेशन मेल में भी आपको एक लिंक आया है, तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप इसी विंडो पे आएंगे. अब यहाँ पर आपसे मांगता है यूजर नेम मांगता है, पासवर्ड मांगता है और ये कैप्चर इससे मांगेगा. तो ये अब जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाया होगा, लेकिन वो अब यहाँ पर वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो आपको एडमिशन लेने तक ही काम कर रहा था. अब आगे इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. तो इसके लिए आपको जैसे पहले आपको रोल नंबर आपको ईमेल आईडी में मिल गया है और आपको एसएमएस के थ्रू भी आपको एडमिशन कंफर्म होने का एसएमएस आपको मिला है. तो यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे और फिर ये एक पासवर्ड को आप छोड़ देंगे और ये कैप्चर डालेंगे और ये न्यू रजिस्टर करके एक ऑप्शन है यहाँ पर. तो न्यू रजिस्टर में जब जाएंगे तो एक विंडो आपको आगे खुलेगी और उसमें आपसे मांगेगा कि आपके आईडी कार्ड पे जो नाम है वो नाम डालिए और फिर कुछ ओटीपी आएंगे, कुछ ईमेल पे ओटीपी आएंगे और उस जो आप ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा. उसके वो आपको ईमेल के थ्रू भी आपको मिलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है. अब जैसे कि जब रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है तो फिर हमें इस विंडो में जाकर के आगे एंटर करना होता है कि आगे इसमें हमें क्या मिलेगा. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक स्टूडेंट का मेरे पास रोल नंबर है, मैं उसको करके आपको दिखाता हूँ.
जैसे ये मैंने उनका रोल नंबर डाल दिया है, इनरोलमेंट नंबर डाल दिया, और ये मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, और ये कैप्चर में डालूंगा। तो अब मैं लॉगिन करूंगा तो ये एक विंडो खुलेगी। अब ये जिसका भी है या आपका भी है, अगर आपने भी इस तरह से कर लिया है, तो आगे जब तक आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तब तक यही आपका यूजर आईडी रहेगा और यही आपका पासवर्ड रहेगा। इसी यूजर आईडी पासवर्ड से ही आप अपना आगे जो भी अपने विंडो में जाएंगे, अपने लॉगिन में जाएंगे, तो इसी पासवर्ड से आप जाएंगे। पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर की हेल्प से ही होगा। लेकिन आपका मान लो फोन नंबर बंद हो गया है, ईमेल आईडी भी आपकी बंद हो गई है, तो उसके लिए फिर आप हमें रीजन सेंटर नोएडा को कॉन्टेक्ट करेंगे, ईमेल भेजेंगे कि हमारा ये पासवर्ड नहीं काम कर रहा है, तो हम उसको यहाँ से रीसेट कर देते हैं और फिर आपको ईमेल के द्वारा आपको सूचित कर देते हैं कि आपका पासवर्ड ये हमने रीसेट कर दिया है। तो जब ये आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपके केवल दो इसमें प्रोसेस होंगे। एक तो आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा, और हाँ, केवल आपको यहाँ पर एग्जाम फॉर्म का ही ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन तो आपको नहीं है, क्योंकि आपका ये 1 साल का प्रोग्राम है, इसमें री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो केवल आप अपना यहाँ से एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे, और दूसरी सर्विसेज भी इसमें यहाँ से मिलेंगी आपको। जैसे ये एक मैंने पेज खोला है, तो इसमें एग्जाम फॉर्म है और ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, असाइनमेंट्स हैं, और आपका ईबीसी अकाउंट है, आईडी कार्ड है। लेकिन आप जैसे आपका आईडी कार्ड अगर आपको खो जाता है तो आप यहाँ से उसको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका पासवर्ड भी उसमें लिखा हुआ होता है, जबकि जनरली पासवर्ड उसका आपका इनरोलमेंट नंबर ही होता है। तो यहाँ से आईडी कार्ड ले सकते हैं, अपना एड्रेस यहाँ से चेक कर सकते हैं, और आपको आपका जो प्रोसेस शुरू होगा, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, असाइनमेंट जमा करना है, तो वो आपको मार्च में करना होगा, क्योंकि पहला एग्जाम आपका जून 26 में होगा। तो जून 26 एग्जाम के लिए मार्च में आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन के लिए ये एक ऑप्शन है, आप इसमें जाएंगे एग्जामिनेशन में, और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है। तो ये हम जब खोलेंगे तो ये यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसमें लिखा है, क्योंकि ये ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जिसका मैंने ये अभी आपको खोल के दिखाया है, तो ये अभी इनका ऑप्शन खुलेगा मार्च में। अभी इनका यहाँ पर कोर्स कोई शो नहीं करेगा, क्योंकि इनका अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। तो जब आपका एग्जामिनेशन आप खोलेंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म तो मार्च में खोलेंगे, तो मार्च में आपके यहाँ पर सारे कोर्स दिखाई देंगे। तो जब कोर्स दिखाई देंगे तो फिर आप उस पर अपना स्टडी सेंटर, वो एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, और अपना जो भी कोर्स आपके हैं, सब्जेक्ट हैं, मान लो उसमें से आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 पेपर आपको देने हैं या 3 देने हैं, जो भी उसमें से आप सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सबमिट करेंगे, और ऑनलाइन फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो तभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट होगा। आप एग्जाम सेंटर आप कहीं भी ले सकते हैं, मान लो आपका स्टडी सेंटर गाजियाबाद है या नोएडा है, लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में एग्जाम देना चाहते हैं, या कहीं भी दिल्ली से बाहर भी कहीं एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो एग्जाम सेंटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं एग्जाम सेंटर्स पर, वो जो आप चाहते हैं उस पर नहीं उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उससे पहले काफी स्टूडेंट फॉर्म भर चुके होते हैं। तो सीट की दिक्कत कई बार आ सकती है वहां पर, अगर आप लेट फॉर्म भरेंगे, क्योंकि फिर आपको दूसरा सेंटर लेना पड़ेगा जो आपके दूसरी दूर हो सकता है। लेकिन आपको अगर अपने नियर बाय सेंटर लेना है तो आप स्टार्टिंग में ही आप भरिएगा उस फॉर्म को, तभी आपको वहां पर सीट मिलेगी। और दूसरा ये है कि फिर उसी टाइम मार्च में ही आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे। असाइनमेंट हमारी वेबसाइट पे अपलोड किए जाते हैं, और वो उसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको कैसे बनाना है और कहाँ पर जमा करना है। जमा आपको अपने स्टडी सेंटर पे करना होता है। अच्छा, स्टडी सेंटर का ऐसा है कि जब आपने अपना एग्जाम फॉर्म भरा होगा, तो एग्जाम फॉर्म भरने के सॉरी जब आपने अपना एडमिशन फॉर्म भरा होगा, तो उसमें कोई आपने अलग से जो आपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया होगा, वो हो सकता है अब आपको ना मिले। अब आप, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने के कारण हम उनको शिफ्ट कर देते हैं, और शिफ्ट करने के साथ साथ ही वो जो नया आपको स्टडी सेंटर दिया गया है उसको हम अपडेट करते हैं नेट पे।
तो उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ जाएंगे, ये नो योर स्टेटस है, तो इसमें आप जाएंगे, तो इसमें ये एक ऑप्शन है यहाँ पर, इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। इसमें आप अगर ये डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा स्टडी सेंटर है, क्योंकि जो मैंने सेंटर भरा है वो मुझे नहीं मिला है, तो वो दूसरा कौन सा मिला है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। हमने सारा अपडेट कर चुके हैं उस पर, जो हमने चेंज किए हैं आपके स्टडी सेंटर, और आपको मेल भी कर दी गई है कि आपका सेंटर हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से हमने वो सेंटर नहीं दे पाए जो आपने ऑप्ट किया था। तो ये देखिए, ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, इस तरह से स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आती है। ये इसका इनरोलमेंट नंबर है, प्रोग्राम है, इसका नाम है, हिंदी मीडियम है, एड्रेस है, और ये स्टडी सेंटर है। ये इसके कोर्स है, फर्स्ट ईयर के इन्होंने कोर्स लिए हैं, ये सारे कोर्स दिए गए हैं। और अगर कोई इसमें आप, क्योंकि फॉर्म आपने ही भरा है, और उस टाइम अगर कोई उसमें आपसे गलती हो गई है, या कोई आपने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया, उसने कुछ गलती कर दी है, मान लो उसने आपके नाम में कोई मिस्टेक कर दी है, या फादर नेम में, या कोई एड्रेस में कोई मिस्टेक कर दी है, तो उसको, या ईमेल आईडी में भी कोई मिस्टेक हो गई है, उसकी वजह से आपको कोई ईमेल नहीं मिला है एडमिशन कंफर्मेशन का, तो आप हमें मेल भेज सकते हैं, rcnoida@ignu.ac.in पे मेल आप कर सकते हैं, और फोन भी कर सकते हैं, लेकिन फोन कई बार आपका नहीं लग पाता होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं और फोन बिजी रहता है, तो हो सकता है आपका फोन ना लगे, लेकिन आप मेल करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरी है उसमें आपको चेंज कराना चाहते हैं, या कोई भी क्वेरी है, तो उसके लिए आप एक मेल हमें कर दें, तो हम उसका आपको जवाब जरूर देंगे। एक दिन लेट हो सकते हैं, 2 दिन लेट हो सकते हैं, लेकिन उसका जवाब आपको जरूर जाएगा, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आती हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है कि सेम डे हम आपको उसका जवाब दे दें, लेकिन उस आपको मेल का जवाब जरूर जाएगा। तो ये एक आपका अपना रिकॉर्ड चेक करने का एक तरीका यही है, जो मैंने आपको भी दिखाया। रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको चेक करनी है, और मान लो आपको जो सेंटर दिया गया है अभी, और वो आपको चेंज कराना है, तो आप उसको चेंज करने के लिए ईमेल करेंगे, लेकिन हम उसमें देखना हमें ये होगा कि जो सेंटर आप मांग रहे हैं, क्या हमने उसमें ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स वहां पर दिए हैं या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वहां पर हम स्टूडेंट नहीं देते हैं, और आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें तो वही स्टेट सेंटर चाहिए, तो उस कंडीशन में हम नहीं कर पाते हैं चेंज, क्योंकि आपको सपोर्ट, फिर वो एक स्टूडेंट अगर रहेगा तो उसको नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम दूसरी जगह आपका सेंटर शिफ्ट करते हैं। तो यही एक, और हमारे काउंसलिंग शेड्यूल, जो आप एडमिशन के बाद हमारे काउंसलिंग होती हैं, जो आपको स्टडी सेंटर पे से मिलती हैं, तो उसका शेड्यूल हम हमारी वेबसाइट पे अपलोड करते हैं कि आपके किस प्रोग्राम की किस टाइम से आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का मतलब यहाँ ये होता है कि यहाँ पे क्लास में ऐसे नहीं है कि भाई क्लास आपको क्लास में जा करके बैठने हैं, वहां पर आपका लेक्चर हो रहे हैं, वहां पर आपको हमारे जो काउंसलर हैं वो आपको मिलेंगे, और आपको सेल्फ स्टडी करके जाना होता है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है फिर वो वहां पर सॉर्ट आउट करते हैं, वो आपको बताते हैं, और उसमें जो हमारा शेड्यूल बना हुआ होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना होता है। ऐसा नहीं कि भाई काउंसलिंग शेड्यूल तो है सैटरडे संडे का, आप वर्किंग डे में चले गए, तो वो फिर वो नहीं मिल पाते हैं काउंसलर वहां पर, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। और हमारी काउंसलिंग शेड्यूल के लिए हमारी वेबसाइट को, जो आरसी नोएडा की वेबसाइट है, उसको आप चेक करते रहें, और उसके लिए वहाँ पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल मिलेगा, और आपको ईमेल भी जाएगी अपनी काउंसलिंग के लिए कि आपको यहाँ आपकी काउंसलिंग उस टाइम से है और दिन है, और ये शेड्यूल आपको अपलोड कर दिया गया, इसको आप देखिएगा। तो ये काउंसलिंग से संबंधित मैंने आपको बताया। और जैसे कि आपका एडमिशन अब हो चुका है, तो अब आप बात सोच रहे होंगे कि हमें किताबें नहीं मिली हैं, और हो सकता है आपको कुछ किताबें मिल भी गई हो। तो एक तो ये है कि सबसे पहले हम, जो हमारा सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम रहते हैं हमारे, जिनके अभी परीक्षाएं भी दिसंबर में होने वाली हैं, उनको फर्स्ट हम उन्हीं को भेजते हैं कि भाई सबसे पहले अभी उनका एग्जाम दिसंबर में आने वाला है, तो उनको किताबें टाइम से मिल जाए। तो सभी को जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उनको सबको किताबें मिल गई हैं, और या अभी वो पोस्ट ऑफिस में होंगी, वो उनको मिल जाएंगी, और नहीं तो फिर वो अब हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ से ई ज्ञान कोर्स में हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो रहता है, आप वहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे स्टडी मटेरियल की बात करें, तो जैसे यहाँ पर मैं अभी अब दिखाऊंगा आपको, ये जुलाई 25 का स्टेटस है, तो यहाँ पर मैं अभी ये इसी स्टूडेंट का रोल नंबर मैं आपको डाल के दिखाता हूँ।
इसका क्या स्टेटस बताता है। तो आपको भी अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि आपका मेटल क्या हुआ है उसका। जैसे कि अभी ये इसका अभी कोई स्टेटस नहीं है क्योंकि ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है और इनका एग्जाम जून में होना है। तो इनका जून में एग्जाम होना है, असाइनमेंट मार्च में जमा करने हैं, एग्जाम फॉर्म मार्च में जमा करना है। तो इनका अभी टाइम लगेगा, इनका अभी प्रोसेस नहीं हुआ है स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पर इनका अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन एक मेरे पास अभी एक दूसरा वो भी है, दूसरा रोल नंबर है जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से दिखाता है स्टेटस के, क्या उनका मटेरियल पहुंच चुका है नहीं, वो सारी अपडेट होता है यहाँ पर। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मैंने नंबर डाला है, तो ये आप देखिएगा, ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, बीसीए है ये, और इसमें 5 कोर्स हैं। और ये इसमें लिखा है कि ये बारकोड है, बारकोड यानी कि जो स्पीड पोस्ट नंबर है वो ये है। इस स्पीड पोस्ट नंबर पे 5 सितंबर को इनको किताबें यूनिवर्सिटी की तरफ से भेज दी गई हैं। किताबें हमारे जो सेंट्रलाइज वहां से हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी से भेजी जाती हैं और डायरेक्टली स्टूडेंट के एड्रेस पे जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एड्रेस में कुछ गलती हो गई है या घर पे कोई नहीं मिला है, तो वो पैकेट वहां तक स्टूडेंट तक नहीं मिल पाता। उस केस में क्या है कि फिर वो पैकेट जो है रीजन सेंटर, जो भी उसका रीजन सेंटर होता है उस पर वापस चला जाता है और फिर रीजनल सेंटर उसको उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वहां से नंबर, फोन नंबर उठा के, ईमेल आईडी उठा के उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि आप अपना यहाँ से स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं कि भाई कई कई बार स्टूडेंट आकर के ले भी जाते हैं, कई बार वो नहीं लेने आते हैं क्योंकि उनका इन्फॉर्मेशन पहले से ही गलत है, उनका ईमेल आईडी पहले ही गलत है, फोन नंबर पहले ही गलत है या वो बदल चुके हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो आप जब आपने एडमिशन लिया है और जो आपने फोन नंबर या ईमेल आईडी उसमें रखी है, आप उसको बार बार चेंज ना कराएं, क्योंकि बार बार चेंज कराने से क्या होगा कि वो कई जगह अपडेट नहीं हो पाता है और फिर आपका जो भी जानकारियां हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो अपना फोन नंबर बार बार चेंज ना कराएं। और क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट 2 महीने में, 3 महीने में फ्रिक्वेंटली वो नंबर चेंज कराते रहते हैं, वो अपडेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए अपना फोन नंबर चेंज ना कराएं। और अब आपको प्रोसेस यही, अब केवल आपको प्रोसेस करना है, अपना असाइनमेंट बनाना है और अपना एग्जाम फॉर्म भरना है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो जैसे भी मैंने आपको अभी दिखाई थी, जो अपना आईडी बनाया था उसी पे आपको मिलेंगी। आपका जब सर्टिफिकेट पूरा हो जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट भी वहीं पे मिलेगा जो सॉफ्ट कॉपी होता है। हार्ड कॉपी तो इग्नू मैदानगढ़ी से आपके एड्रेस पे आएगी। अब वही है कि एड्रेस आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, क्योंकि जब आपको अगर किताबें मिल गई हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी वहीं पे मिल जाएगा एड्रेस पे। लेकिन अगर कोई किताबें आपको नहीं मिली हैं या कोई और यहाँ से जो लेटर जाते हैं वो नहीं मिले हैं, तो फिर आपको एड्रेस में चेक कराने की जरूरत है या अपना पोस्ट ऑफिस में मिलने की जरूरत है कि वो क्यों नहीं आपके पास तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी भेज देती है और स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है, तो फिर वो वापस हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी में चला जाता है, फिर वहां से उनको बाय हैंड लेना पड़ता है। तो इसलिए एक तो अपना एड्रेस आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि वो क्या वो हमने ठीक भरा है, क्योंकि हमारी तरफ से उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है, वो आपने ही भरा है, फोन नंबर आपने भरा है, ईमेल आईडी आपने भरा है। हाँ, हमारी तरफ से केवल स्टडी सेंटर में जरूर अपडेशन हुआ है। अगर वो आपकी जो आपने भरा था वो नहीं मिला है तो एक बार उसे आप चेक कर लें। और यही आपका आपके कोर्स के लिए यही प्रोसेस है। इससे आगे आपका री रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं क्योंकि आपका 1 साल का प्रोग्राम है। लेकिन ये है कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन, अगर आप मिनिमम ड्यूरेशन में अपना नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है, उसमें आप उसको जरूर कंप्लीट करिएगा। नहीं तो फिर आपका ये कोर्स बेकार हो जाता है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ने री एडमिशन वगैरह ये सारा कुछ बंद कर दिया है। आपको फिर दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा और ये सारा आपका जो फीस है वो बेकार हो जाती है। तो इसलिए इतना जरूर होता है कि आपके जैसे अभी आपके मान लो 6 पेपर हैं, तो आप 6 पेपर आप जून में, 3 पेपर जून में दीजिए, 3 पेपर आप दिसंबर में दीजिए। तो इस तरह से आप वो कर सकते हैं। और या फिर आप जितने पेपर आप जून में दे रहे हैं, 6 पेपर मान लो जून में दे रहे हैं, उनमें से कोई आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो उसको आप दिसंबर में दे सकते हैं। तो इससे इससे आगे आगे की जानकारी के लिए मैं मैडम को करता हूँ, ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच संजय जी, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ साझा करने के लिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे संजय जी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बता रहे थे, उसी वक्त साइमल्टेनियसली मैं और मेरे दोनों बाकी जो कलीग्स हैं, सत्येंद्र जी और अंजना मैडम, हम लोग आपके लिए जो चैट बॉक्स है उसमें काफी सारे इम्पोर्टेंट यूआरएल्स, इग्नू के लिंक्स और ईमेल आईडीज आरसी नोएडा में मैं बताना चाहूंगी। एक तो rcnoida@igno.ac.in एक कॉमन ईमेल आईडी है, उसके अलावा स्टडी मटेरियल के लिए अलग ईमेल आईडी है, असाइनमेंट रिलेटेड क्वेरीज के लिए अलग ईमेल आईडी है, काउंसलिंग के लिए अलग ईमेल आईडी है और एग्जामिनेशन मैटर्स के लिए अलग ईमेल आईडी है, और जनरल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के लिए भी हम लोगों ने एक अलग ईमेल आईडी बना रखा है। और ये सारे ईमेल आईडीज हम लोगों ने अभी आपका जो चैट बॉक्स है उसमें हमने शेयर किया है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट यूआरएल्स जैसे ई ज्ञान संगम है, जो हम लोग का ऑनलाइन रिसोर्स डिपोजिटरी है, उसका लिंक मैडम ने अभी शेयर किया है। सत्येंद्र कुशवाहा जी ने जो हमारा आरसी नोएडा का एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस वो वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब स्टूडेंट्स जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, आप लोग चाहें तो वो यूआरएल्स आप लोग कॉपी करके अपने पास रख लीजिए, और टाइम टू टाइम एटलीस्ट आई थिंक वंस इन अ वीक आप चाहें तो उन यूआरएल्स को देख के आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सत्येंद्र कुशवाहा जी को, सबसे पहले तो वो एक छोटा सा इंडक्शन मीटिंग का वीडियो है उसको प्ले करेंगे आप सबके लिए, उसको आप सुन सकते हैं, और वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी है। और उसके बाद फिर वो डिफरेंट डिजिटल रिसोर्सेज हम लोगों ने जो स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया है, या तो रीजनल सेंटर नोएडा ने तैयार किया है या फिर इग्नू की तरफ से डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, उसके बारे में आपको वो डेमो देंगे। सत्येंद्र कुशवाहा जी, प्लीज ओवर टू यू नाउ, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। एक बार फिर से आप सभी का आज की इस इंडक्शन मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि सबसे पहले हम आइए एक वीडियो देखते हैं। तो अभी संजय जी ने जो भी बातें बताई हैं, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कुछ आपके मन में प्रश्न भी आए, तो इसके लिए हम लोगों ने लास्ट में सेशन रखा है, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस पुट करिएगा, हम लोग उनके जवाब देंगे। तो मैं एक बार अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं। तो इग्नू में एडमिशन हो गया, बहुत बहुत बधाई। वेलकम लेटर भी आ गया होगा, लेकिन अब आगे क्या करना है? अगर ये सवाल मन में घूम रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए अगले कुछ मिनटों में एडमिशन से लेकर पहली परीक्षा तक का पूरा रास्ता एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं। तो देखिए, सारी कहानी की शुरुआत होती है इस वेलकम लेटर से जो आपके ईमेल पर आया होगा। चलिए इसे डिकोड करते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें सबसे जरूरी जानकारी क्या है और हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। हमने इग्नू की इस पूरी जर्नी को 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआती डिजिटल स्टेप्स क्या हैं, फिर जानेंगे कि स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, उसके बाद आपकी पूरी एकेडमिक जर्नी को समझेंगे, और आखिर में अगर कोई दिक्कत आए तो सपोर्ट के लिए किससे और कैसे कांटेक्ट करना है ये भी देखेंगे। तो शुरू करें। हमारा पहला पड़ाव, आपके डिजिटल फर्स्ट स्टेप्स। एडमिशन कंफर्म होते ही सबसे पहले ऑनलाइन जाके यही सारे काम निपटाने हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी स्टार्टिंग चेकलिस्ट। एकदम सिंपल है। स्टेप 1, वेलकम ईमेल में एक फाइल अटैच्ड होगी, वो आपका आईडी कार्ड है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसे खोलने का पासवर्ड वो आपका एनरोलमेंट नंबर ही है। स्टेप 2, ignou.samarth.edu पर जाकर स्टूडेंट पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर लें। और हाँ, स्टेप 3 बहुत जरूरी है। एडमिशन के 2 से 3 हफ्तों बाद ऑनलाइन जाकर अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस और स्टडी सेंटर की डिटेल्स एक बार जरूर कंफर्म कर लें। अच्छा, तो ई ज्ञान संगम इग्नू के नोएडा रीजनल सेंटर का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य है छात्रों के लिए, खासकर दूरस्थ शिक्षा के छात्रों के लिए, पढ़ाई से जुड़े सभी जरूरी संसाधन जैसे प्रोग्राम गाइड, स्टडी मटेरियल और खास तौर पर वीडियो लेक्चर
एक ही जगह पर आसानी से उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। वो एक क्लिक में अनेक संसाधन वाली बात। हाँ, वही। ये सेंट्रलाइजेशन और एक्सेस पर फोकस करता है। ये डिजिटल स्टूडेंट सपोर्ट का एक कॉन्क्रीट उदाहरण पेश करने की कोशिश है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके छात्रों की पढ़ाई में मदद करना। चलिए, ऑनलाइन सेटअप वाला काम तो हो गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी कि हमारी लर्निंग टूल किट, हमारा स्टडी मटेरियल। आखिर पढ़ाई तो इसी से शुरू होगी, है ना? यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है जो आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करती है। अगर आप ओडीएल प्रोग्राम में हैं और आपने प्रिंटेड किताबें चुनी हैं, तो वो डाक के जरिए आपके घर आएंगी। आप उनका डिस्पैच स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में हैं, तो कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं भेजा जाएगा। आपकी सारी किताबें, असाइनमेंट्स, सब कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस पर ही मिलेगा। किताबों के अलावा इग्नू के पास एक डिजिटल खजाना भी है। ई ज्ञान कोश वेबसाइट से सारा मटेरियल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू का ई कंटेंट ऐप भी है, मतलब चलते फिरते कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेबस और एग्जाम की पूरी डिटेल प्रोग्राम गाइड में मिलेगी। और ईएमपीसी इग्नू के यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो लेक्चर्स का पूरा भंडार है। तो अब जब मटेरियल हाथ में है, तो ये जानना भी जरूरी है कि पढ़ाई का सफर चलेगा कैसे। सेक्शन 3 इसी बारे में है कि आपकी एकेडमिक जर्नी की लय, उसका रिदम क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग सेशंस की। इन्हें आप अपनी क्लास की तरह समझ सकते हैं, जहां एकेडमिक काउंसलर से अपने सारे डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है, थ्योरी सेशंस में जाना अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल सेशंस में हाजिरी लगाना यानी कि अटेंडेंस एकदम जरूरी है, वो मैंडेटरी है। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट्स। ये हर कोर्स का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जवाब आपके अपने शब्दों में, अपनी समझ से लिखे हुए होने चाहिए। कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ काम रिजेक्ट हो सकता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। और ये असाइनमेंट्स कितने जरूरी हैं? इसका जवाब है ये नंबर, 25 से 30%। सोचिए, आपके फाइनल ग्रेड्स में इतना बड़ा हिस्सा असाइनमेंट्स का होता है। और ये भी जान लीजिए कि असाइनमेंट जमा किए बिना फाइनल परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। फिर आते हैं टर्म एंड एग्जाम्स, जिन्हें टीईई भी कहते हैं। ये साल में 2 बार होते हैं, जून में और दिसंबर में। और इनमें बैठने के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना होता है। तो एक सेमेस्टर पूरा हुआ, लेकिन अगले सेमेस्टर में जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी स्टेप है, री रजिस्ट्रेशन। बैचलर और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को अगले साल या सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए री रजिस्टर करना होता है। और सबसे खास बात, इसके लिए पिछले एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, तभी आपका कोर्स टाइम पर पूरा हो पाएगा। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे काम के सेक्शन पर, सेक्शन 4, सपोर्ट और की कॉन्टैक्ट्स। मतलब अगर कहीं कोई मुश्किल आए तो मदद के लिए कहां जाना है, किससे बात करनी है। मदद चाहिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, शुरुआत यहां से करनी है। ये टेबल समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइड है। जैसे नाम या पते में कुछ ठीक कराना है तो सीधे रीजनल सेंटर जाइए। स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा तो रजिस्ट्रार एमपीडीडी को संपर्क करें। असाइनमेंट के नंबर अपडेट नहीं हुए, इसके लिए भी रीजनल सेंटर जाना होगा। और एग्जाम रिजल्ट या ग्रेड कार्ड से जुड़ी कोई बात हो तो इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा ये कुछ जरूरी वेबसाइट्स हैं, इन्हें तो बुकमार्क कर ही लेना चाहिए। और काउंसलिंग या असाइनमेंट से जुड़ी हर घोषणा के लिए अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। और हाँ, आजकल के जमाने में अपडेटेड रहना सबसे जरूरी है ना? तो कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो, इसके लिए इग्नू के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर सारी ताजा जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो बस ये था आपका इग्नू का क्विक स्टार्ट गाइड। एक नया और रोमांचक सफर शुरू हो चुका है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में री रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका प्रोग्राम ईयरली मोड पे और सेमेस्टर वाला होता है। जैसे आप लोगों का प्रोग्राम तो ईयरली मोड पे है, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने किसी पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सामान्य तौर पर ये प्रक्रिया मैनेजमेंट प्रोग्राम के जो डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं उनमें होती है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं और जैसा कि मैम ने निर्देशित किया है कि जो इग्नू के डिजिटल रिसोर्सेस हैं उनके बारे में आप तक मुझे जानकारी पहुंचानी है। तो मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं।
तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारी जो इग्नू की मेन वेबसाइट है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा। ऑलरेडी संजय जी ने आपको सभी जानकारियां दे दी हैं जो आपके लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण है। एक इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है अनाउंसमेंट्स का। अगर आप इस मेन वेबसाइट पे नहीं गए हैं तो जरूर जाइए, इस अनाउंसमेंट सेक्शन पे विजिट किया करें। यहाँ पे जो विश्वविद्यालय के लेटेस्ट अपडेट्स हैं, चाहे वो एडमिशन के हों या एग्जामिनेशन के हों या असाइनमेंट्स के हों, जो भी अपडेट्स होते हैं वो विश्वविद्यालय द्वारा इस सेक्शन में अपडेट किया जाता है। तो आप जरूर एक बार इग्नू की वेबसाइट पे जाएं और बाकी चीज़ें भी देखें। अनाउंसमेंट सेक्शन के साथ ही साथ जो स्टूडेंट सर्विसेज का पेज है इसको विजिट करें। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और अब चलता हूँ अपनी जो रीजनल सेंटर नोएडा की वेबसाइट है इसकी तरफ चलता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये रीजनल सेंटर की, यहाँ पे हमने कुछ अपडेट्स लगा रखे हैं, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, स्टूडेंट सर्विसेज का लिंक दिया हुआ है और ये ज्ञान संगम वेब पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। उससे पहले यहाँ राइट साइड में देख पा रहे होंगे तो हमारे रीजनल सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी हमने चैट बॉक्स पे भी शेयर किया है, मैसेज बॉक्स में। और यहाँ पे आपको गूगल मैप के माध्यम से आप हमारे रीजनल सेंटर पे कैसे आ सकते हैं उसका भी लिंक हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, जहाँ पर हम नियमित रूप से जो विश्वविद्यालय के अपडेट्स हैं, आपके अध्ययन अध्यापन से संबंधित अपडेट्स हैं, उनको यहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एक बार आप इन जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको जाइए, इनको फॉलो करिए ताकि आप अपडेट लेते रहें। तो एक बार मैं आपको इनकी एक झलक दिखा देता हूँ जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। जैसे ये रीजनल सेंटर का फेसबुक का पेज है, यहाँ पे देखिए हम जो भी अपडेट्स होते हैं, जैसे ये ज्ञान संगम वेब पोर्टल के बारे में अपडेट्स है या विश्वविद्यालय द्वारा जो भी मेन पोर्टल पे अपडेट्स दिए जाते हैं वो सब हम यहाँ पे प्रतिदिन शेयर करते हैं। तो मैं आप लोग इनको जाइए और इस पेज को आप फॉलो करिए, तो आपकी बहुत सारी जो विश्वविद्यालय संबंधित गतिविधियों की जानकारी है वो आपको इस पेज के माध्यम से नियमित रूप से मिला करेंगी। इसी तरह से ये हमारा एक्स हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, यहाँ भी वो सब इंफॉर्मेशन जो हमारे डेली वीडियो लेक्चर्स होते हैं, जो हमारा EMPC का यूट्यूब चैनल है, उनके वीडियो लेक्चर्स की डिटेल हम यहाँ अपडेट करते हैं मॉर्निंग में कि आज किस प्रोग्राम की कौन सी क्लास होगी। तो आप यहाँ से आपके अध्ययन अध्यापन के बारे में काफ़ी मदद मिल जाएगी। ये हमारा इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा का टेलीग्राम का पेज है, टेलीग्राम चैनल का पेज है, वही सब चीज़ें हम यहाँ भी शेयर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव गतिविधियां हैं, जो विश्वविद्यालय की जो गतिविधियां हैं, वो सब यहाँ से आपको पता चल जाएंगी। साथ ही साथ एकेडमिक गतिविधियां भी आपको यहाँ से पता चलेंगी, कौन सी गतिविधि वर्तमान में चल रही है वो सब हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। ये हमारा RC नोएडा का यूट्यूब का चैनल है, यहाँ पे भी देखिए आप बहुत सारे वीडियोज लगे हुए हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में हैं, कुछ यहाँ पे हमारी जो गतिविधियां चलती रहती हैं रीजनल सेंटर के बारे में, स्टडी सेंटर्स के बारे में, तो ये सब हम यहाँ पे आप सब लोगों के लिए लेकर के आते हैं, अपलोड करते हैं। तो अब फिर से वापस मैं रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे चलता हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्विक लिंक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी जाकर के आप अपने स्टडी मटेरियल का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बाकी आपको अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए स्टडी मटेरियल की, उसका लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा। इसी तरह से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो या तो आप इग्नू की मेन वेबसाइट पे जाएं या यहाँ जाएं, दोनों जगह वही लिंक दिए हुए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। इसी तरह से हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल की क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, वो सबकी अपडेट यहाँ पे हम शेयर करते हैं। तो ये हमारा पेज है, क्विक लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट का पेज। फिर इसी तरह से डिग्री और माइग्रेशन से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जब प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको डिग्री या माइग्रेशन की आवश्यकता होती है, तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लगाई है। एक बार आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं उनके लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं डेट वाइज, तो यहाँ से आपको वो सभी नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, वो सब हमने यहाँ पे वेबसाइट पे एक पेज पे अपलोड किया है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है काउंसलिंग शेड्यूल। जैसा कि अभी हमारे संजय सर बता रहे थे कि आपकी जो काउंसलिंग है आपके अध्ययन केंद्र पे होती है। काउंसलिंग का मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ पे आपको आपके जो कोर्सेस हैं उनकी कुछ क्लासेस दी जाती हैं, गाइडेंस दिया जाता है
तो उनकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए आपको हमारा जो ये वेबसाइट का ये वाला पेज है, काउंसलिंग शेड्यूल वाला पेज है, इस पे जाना होगा। यहाँ पे हम शेड्यूल अपडेट करते हैं, ये पूरे अध्ययन केंद्रों से जो भी शेड्यूल आते हैं तो यहाँ पे हम उनको लगाते हैं। तो आप इन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल रहती है कि कौन सी क्लास है, कब होनी है, ये पूरा इस तरह से डिटेल हमें अध्ययन केंद्रों के माध्यम से हम तक आता है और हम इसको वेबसाइट पे अपडेट करते हैं। तो ये काउंसलिंग शेड्यूल वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी वीडियो में आपने सुना होगा वेलकम लेटर की बात की जा रही थी। अगर आपने अपना वेलकम लेटर प्राप्त नहीं किया है तो आप यहाँ भी जाके देख सकते हैं। हमने अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे भी एक वेलकम लेटर अपलोड कर रखा हुआ है। फिर इसके बाद अनाउंसमेंट का सेक्शन है, आगे जो इग्नू मुख्यालय में अपडेट्स आते हैं वो हम यहाँ पे लगाते हैं। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे अनाउंसमेंट और न्यूज इवेंट का दो सेक्शन दिए हुए हैं। तो अनाउंसमेंट और न्यूज इवेंट दोनों ही सेक्शनों में हम जो भी रेगुलर अपडेट्स हैं विश्वविद्यालय के वो यहाँ पे लगाते हैं। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आज जो भी बात कर रहे हैं या जो भी हमारे विश्वविद्यालय में नए बच्चे आते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो सब हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। वो ये पीडीएफ फाइल खुलेगी तो इसमें वो सभी जानकारियां इसमें मौजूद हैं, एग्जामिनेशन के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, आई कार्ड किस तरह से डाउनलोड करें। तो अगर आपका कोई चीज मिस हो गया है, आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस पेज पे जाइएगा, यहाँ से क्लिक करके इस फाइल को आप डाउनलोड करके आप डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने दिए हैं, जैसे कि आपको री रजिस्ट्रेशन अपना एडमिशन का डिटेल प्राप्त करना है तो यहाँ पे ये लिंक दिया है चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना एडमिशन का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपने इग्नू का आई कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल का स्टेटस, डिस्पैच का स्टेटस आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से नीचे आप देख पा रहे होंगे क्लिक हियर फॉर रिजल्ट और डिग्री, तो रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, डिग्री का स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे रीजनल सेंटर नोएडा की वेबसाइट का होम पेज था। इसमें आपसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हम यहाँ पे लेके आए और उसके बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट वेब पोर्टल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ई ज्ञान संगम वेब पोर्टल, इसके बारे में बताते हैं। ये रीजनल सेंटर नोएडा द्वारा तैयार किया गया एक वेब पोर्टल है। जो इस वेब पोर्टल की खास बात यह है कि जो हमारे इग्नू के विद्यार्थी हैं वो चाहे किसी भी रीजनल सेंटर के हों, सभी के लिए हमने ये बनाया है। और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको आपकी अध्ययन सामग्री, आपकी प्रोग्राम गाइड और आपके प्रोग्राम से संबंधित जो वीडियो लेक्चर्स हैं जो इग्नू के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, ऑथेंटिक जेन्युइन लिंक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए हम किसी प्रोग्राम में चलते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो एक बार हम इस पेज पे विजिट करते हैं। तो आप अपने प्रोग्राम की कैटेगरी पे जाएंगे तो आपके इस प्रोग्राम की कैटेगरी में जितने भी प्रोग्राम हैं वो सभी यहाँ पे हमने अपडेट किए हुए हैं। अब इस प्रोग्राम में चलिए चलते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन का एक प्रोग्राम होता है, आप इसको कंट्रोल ऐप करके पीजीडीएचई एक प्रोग्राम होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं और वैसे भी एक एक करके पढ़ के भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में जाके देखते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोग्राम गाइड का लिंक दिया हुआ है। यहाँ से आप जाकर के प्रोग्राम गाइड और स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमारे जो इग्नू का मेन ई ज्ञान कोर्स जो हमारी वेबसाइट है उससे लिंक कर रखा है। तो आप वहाँ पे जाइएगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी प्रोग्राम गाइड और यहाँ से अध्ययन सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ वीडियोज दिए हुए हैं जो कि इग्नू के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी हैं स्कूल्स के, उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं और वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने उनके लिंक यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कराई है जो पीजीडीएचई प्रोग्राम के सभी वीडियो एक जगह रख दिए गए हैं। तो यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे एक बार चलाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये आपके प्रोग्राम का एक वीडियो यहाँ पे आ गया। तो इस वीडियो में रिव्यू और रिलेटेड लिटरेचर के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह से आप जा करके दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं। तो आपके जो ई लर्निंग रिसोर्सेस हैं वो आपको यहाँ से बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस पोर्टल पे विजिट करें आप, यहाँ होम पेज पे जाएंगे तो सभी प्रोग्राम के हिसाब से कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। आपका प्रोग्राम जिस कैटेगरी में है, जैसे आज पीजी डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं हमारे साथ, तो हमें उनकी बात होगी, तो ये यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया।
अब मेरे ख्याल से जो मुझे चीज़ें बतानी थी वो सब मैंने आप तक पहुंचा दी, तो अब मैं अपनी स्क्रीन की शेयरिंग यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सत्येंद्र कुशवाहा जी, इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में बताने के लिए, और उसके अलावा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रिसोर्सेज जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने उनके लिए प्रोवाइड किया हुआ है उसके बारे में उनको बताने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी कलीग डॉक्टर अंजना, डिप्टी डायरेक्टर इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा, को स्टूडेंट्स के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ और जानकारी साझा करें जो उनके लिए लाभदायक हो। डॉक्टर अंजना, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। और मेरे सभी साथियों को जो कि रीजनल सेंटर से इस मीटिंग में एज रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं उनको, और सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। लगभग 1 घंटा होने को आया, हम बात ही खत्म नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी बातें, क्योंकि हमें इंडक्शन मीटिंग में अपने साथियों से सुनने को उनके पास बहुत सारी बातें होती है जो विद्यार्थियों तक पहुंचानी होती है। तो विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बेयर विद अस। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 घंटा हो चुका है और आपके बहुत सारे प्रश्न भी होंगे। तो जैसे ही मैं अपना बात खत्म करूंगी उसके बाद में क्वेश्चन आंसर का हम जो लिंक है उसको हम ओपन कर देंगे। आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, हम एक एक करके कोशिश करेंगे आपके आंसर्स करने की। लेकिन ध्यान रखिएगा एक ही क्वेश्चन को रिपीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत सारे एक ही तरह के क्वेश्चन सामने आ जाते हैं और फिर आंसर की बात कर नहीं पाते, उसको ढूंढने में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसा कि मुझे निर्देशित किया गया था पहले ही कि मुझे टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करनी है कि हमारी जो इग्नू की टर्मिनोलॉजी है वो कन्वेंशनल सिस्टम से अलग है। तो वहीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपने एडमिशन लिया है, तो हम जनरल सिस्टम में क्या कहते हैं कि हमने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है। इग्नू में क्या बोलते हैं कि हमने किसी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। हो सकता है कि आपने, जैसे भी सत्येंद्र कुशवाहा जी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, या संजय जी ने ग्रेजुएशन प्रोग्राम का दिखाया था, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी में प्रोग्राम है, ये कोर्स नहीं है। और जिन चीजों को आप जनरली सब्जेक्ट बोलते हैं उनको हम कोर्स बोलते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस शुरुआती टर्मिनोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद में आपने सुना होगा, हम लोग बार बार बात कर रहे थे एकेडमिक काउंसलर्स के बारे में और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। तो जिनको आप टीचर्स कहते हैं कॉलेज में, स्कूल में, कन्वेंशनल सिस्टम में, उनको यहाँ पर हम एकेडमिक काउंसलर्स बोलते हैं। होते वही हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं, वो उन्हीं कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। उन्हीं की सर्विसेज आपको दी जाती है, एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज आपको दी जाती है। लेकिन यहाँ पर वो आपको पढ़ाते ही नहीं है सिर्फ, बल्कि आपको काउंसिल करने का काम करते हैं। आपकी कोई प्रोग्राम रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, आपके कोई ग्रीवेंसेस होते हैं, न सिर्फ एकेडमिक बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव में भी कई बार वो आपकी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लेक्चर आपको नहीं देंगे, आप पढ़ करके खुद जाएंगे। जैसा संजय जी कह रहे थे पहले कि आपको खुद से पढ़कर जाना है। आप अपनी पढ़ाई करेंगे, अपनी क्वेरीज को नोट करेंगे, स्टडी सेंटर जाएंगे, अपने काउंसलर से मिलेंगे, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। तो दैट इज द पार्ट ऑफ अबाउट दिस टीचर्स एंड एकेडमिक काउंसलर्स। अब जो आपको पढ़ाया जाता है दैट इज कॉल्ड टीचिंग इन कन्वेंशनल सिस्टम एंड वी कॉल इट एकेडमिक काउंसलिंग। मोर और लेस सेम ही है, काउंसलर है तो वो काउंसलिंग करेंगे। जो क्लासेस होती है वहां पर वी कॉल इट काउंसलिंग शेड्यूल, जिसको आपकी शायद टाइम टेबल बोलते हैं। क्लासेस के लिए टाइम टेबल होते हैं कि आप वो टाइम टेबल फॉलो करते हैं, उसको हम यहाँ काउंसलिंग शेड्यूल बोलते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को काउंसलिंग शेड्यूल फॉलो करना होता है। उसके बाद में असाइनमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि असाइनमेंट पे हमारा काफी फोकस रहता है और वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी होता है इवैल्यूएशन का। तो आप इसको एक तरह से होमवर्क मान सकते हैं, क्योंकि आजकल होता क्या, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में कि विद्यार्थियों को होमवर्क दिया जाता है, वो होमवर्क वो करते हैं, उसको इवैल्यूएट किया जाता है और उसका कुछ वेटेज आपका फाइनल एग्जामिनेशन में भी होता है। तो जो होमवर्क होता है कैसे करते हैं, आप घर में रह करके किताबें आपके सामने होती हैं, क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, इट्स लाइक ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो वो सारे रिसोर्सेज आपके सामने होते हैं, आप उसको अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो जो वो होमवर्क है उसको यहाँ असाइनमेंट हम बोल देते हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा, इट हैज डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। और क्योंकि असाइनमेंट की बात करें तो एक और चीज मैं यहाँ पर एक और बात ऐड कर दूं कि हमारे हो सकता है यहाँ पर जो विद्यार्थी जिन्होंने ज्वाइन किया हो वो 2 तरह के विद्यार्थी हों।
एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड वाले हो सकते हैं, दूसरे ऑनलाइन प्रोग्राम के हो सकते हैं, क्योंकि काफी प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन मोड में भी हैं डिप्लोमा लेवल के। तो यदि आपके प्रोग्राम में बाद में OL लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। तो उस केस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मोटा मोटा अंतर मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा डिलीवरी मोड में सिर्फ फर्क है। देखिए, एडमिशन सबने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिया, सबको ऑनलाइन ही आई कार्ड जनरेट होगा, सबको ऑनलाइन ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा, सबका रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, ये सब चीजें सेम है। एक तो स्टडी मटेरियल में डिफरेंस आ जाता है कि जो ODL वाले हमारे विद्यार्थी होते हैं और उन्होंने हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल ऑप्ट किया होता है। स्टडी मटेरियल यानी बुक्स, जिसको कन्वेंशनल में बुक्स कहते हैं। अगर हार्ड कॉपी में ऑप्ट किया होता है तो उनके घर के पते पर पहुंच जाती हैं किताबें, और जिन्होंने ऑनलाइन ऑप्ट किया होता है या वो विद्यार्थी जिन्होंने फी कंसेशन लिया होता है, 15% फी कंसेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन उन्होंने ऑप्ट किया होता है, तो उनको सॉफ्ट कॉपी में स्टडी मटेरियल दिया जाता है। नाउ कमिंग बैक टू द असाइनमेंट्स, जहां से ये बात हमने शुरू की। देखिए, असाइनमेंट सबमिशन का जो मोड है वो यहाँ डिफरेंट हो जाता है। जो ODL मोड के स्टूडेंट्स हैं वो हार्ड कॉपी अपने असाइनमेंट्स बना करके अपने स्टडी सेंटर पर जमा करते हैं, और जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं वो उन्हीं हैंड रिटन असाइनमेंट्स को बनाना उसी तरह से है, क्वेश्चन पेपर वही होगा, उनको स्कैन करके आपका जो LMS पोर्टल होता है उसका क्रेडेंशियल्स आई एम श्योर के जो हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं उन तक पहुंच चुका होगा। आप उन क्रेडेंशियल्स को यूज करके LMS पर लॉग इन करेंगे, वहां पर असाइनमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन होगा। असाइनमेंट्स हैंड रिटन ही होंगे, स्कैन करके आपको PDF फॉर्मेट में वहां पर अपलोड करना होगा। उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कहाँ आपको करना है, एक बार आप लॉग इन करेंगे पोर्टल में तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप कहीं परेशानी को फेस करते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये बात रही आपके असाइनमेंट्स की। आगे चलते हैं, जिसको आप एग्जाम बोलते हैं, परीक्षा बोलते हैं, उसको हम टर्म एंड एग्जामिनेशन बोलते हैं। टर्म एंड इसलिए कि हमारी साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं। एनुअल प्रोग्राम में, बाकी कन्वेंशनल सिस्टम में जनरली जुलाई सेशन में एडमिशन होता है, और परीक्षाएं जो आमतौर पर जून या अगस्त उस तरह से होती है। हमारी परीक्षाएं 2 बार होती हैं, हमारे एडमिशन 2 बार होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें सत्रांत परीक्षा का नाम देते हैं। तो आप क्योंकि जुलाई 25 के विद्यार्थी हैं, संजय जी ने बता दिया था आपको ऑलरेडी, मैं रिपीट कर रही हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी कि आप जुलाई 25 के विद्यार्थी हैं, आप मार्च में अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो आप फर्स्ट टाइम एलिजिबल हो जाएंगे जून में एग्जाम में अपीयर करने के लिए। उसके पहले बता दिया गया था मैंडेटरी है असाइनमेंट सबमिट करना और उसकी अपने पास रसीद रखना। तो आप जून में पहली बार एलिजिबल होते हैं। इन केस किसी वजह से आप जून में अपीयर नहीं हो पाते हैं, या आपने अपीयर किया, आप मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर नहीं ले पाते हैं उसमें, तो आप दिसंबर में दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, प्रोवाइडेड यू विल हैव टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। असाइनमेंट दोबारा जमा नहीं करना होगा अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर ले लिया है, लेकिन यदि आपको उधर एग्जामिनेशन में नहीं मिला, टर्म एग्जाम में आपके मिनिमम मार्क्स नहीं आए हैं, तो आपको सितंबर अक्टूबर में फिर से एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा और आपको दिसंबर में एग्जामिनेशन में अपीयर करना होगा। उस तरह 1.5 साल पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है अधिकतर हमारे जो डिप्लोमा प्रोग्राम है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है, उनकी जो मैक्सिमम अवधि है, अधिकतम जो अवधि है वो 2 साल है। तो आपको कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आपके पास जून 2027 तक का समय होगा। उतना आते आते आपको अपना कार्यक्रम पूरा कर लेना होगा, और यदि वो समय बीत गया तो उसके बाद फिर आपका कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। तो हमारी आपसे यही आपको सलाह रहेगी, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि विद इन योर ड्यूरेशन आप अपना काम, अपना प्रोग्राम है उसको पूरा कर लीजिएगा। तो टर्मिनोलॉजी के बारे में तो शायद इतना ही है जो मुझे आपके साथ शेयर। हाँ, एक चीज और थी, हॉल टिकट के बारे में, जिसको आप जनरली एडमिट कार्ड बोलते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम में जिसको हम एडमिट कार्ड बोलते हैं, उसको हम ये हॉल टिकट बोलते हैं। हॉल टिकट का क्या काम है, आपको एग्जामिनेशन के पहले उसको डाउनलोड करना होगा। एग्जाम फॉर्म आप फिल कर देंगे मार्च अप्रैल में, आपका जो हॉल टिकट है वो मई के मिड तक आ जाएगा वेबसाइट पर, वो भी होम पेज पर फ्लैश होने लगता है, क्योंकि वेबसाइट पर आ जाता है। हम भी अपनी जो रीजनल वेबसाइट है वहां पर फ्लैश कर देते हैं, वहां से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। और संजय जी शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपने वो जो समर्थ पर लॉग इन करके भी अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। जी मैम, जो भी मैंने बताया था, लॉगिन करके जो एक आईडी बनाना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इनको वहीं पे मिलेगी। आईडी कार्ड मिलेगा, अपना हॉल टिकट मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहीं पर। बिल्कुल। तो आप उस समर्थ पोर्टल पर आप लॉगिन कर लीजिएगा, वहां से आप फॉर्म फिल भी कर दीजिएगा, वहीं से आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिएगा।
और जो भी आपका हॉल टिकट में शेड्यूल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में अपीयर करना होगा। रही बात रिजल्ट डिक्लेरेशन की, वो आएगा आपका, अगर आप जून में अपीयर करेंगे तो मान के चले कि हमारे लगभग मिड जुलाई तक एग्जाम चलते हैं, तो रिजल्ट आते आते सितंबर की स्टार्टिंग हो जाती है। तो उसके पहले आप पैनिक नहीं होगा, क्योंकि आप कई बार पढ़ लेते हैं प्रोस्पेक्टस में, कई पढ़ लेते हैं कि हमारा मैंडेट 45 दिन में रिजल्ट डिक्लेयर करने का। नो डाउट हमारा 45 दिन का मैंडेट है, लेकिन 45 दिन काउंट तब से प्लीज कीजिएगा जब से हमारे एग्जामिनेशन सारे खत्म हो जाए, न कि आपके एग्जाम में अपीयर करने की डेट। तो उतना पेशेंस रखिएगा। दूसरा, असाइनमेंट सबमिट आप कर देंगे मार्च अप्रैल में। आपके जो मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे, जो वेबसाइट पर आप देख पाएंगे, ग्रेड कार्ड में देख पाएंगे, और वो भी आप मार्क्स तभी देख पाएंगे जिस समय आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो एक आप देख पाएंगे टर्म एंड रिजल्ट, जहां से टर्म एंड थियरी एग्जामिनेशन आपने दिए होंगे उसका रिजल्ट होगा। दूसरा होगा ग्रेड कार्ड, जहां पर आपका टर्म एंड एग्जाम का भी रिजल्ट दिखाई देगा, साथ में आपके असाइनमेंट्स में कितने मार्क्स आए हैं वो भी आपको वहां पर दिख जाएगा। कई बार होता है कि टर्म का रिजल्ट आ जाता है, असाइनमेंट का अपडेट नहीं होता, या कई बार असाइनमेंट का आ गया टर्म का नहीं है, तो उस केस में आपका कोर्स के सामने नॉट कंप्लीटेड लिखा होता है, तो उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि बल्क में असाइनमेंट के अवार्ड्स हमारे पास आते हैं, हमें हेडक्वार्टर ट्रांसमिट करना होता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर सितंबर हम कह रहे हैं तो आप अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का जरूर वेट कीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं अपडेट हो रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर कोर्स के थियरी के आपके एग्जाम के नहीं मार्क्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। उसमें जो भी संभावित समस्या समाधान के लिए हमारे पास प्रावधान होंगे, तो उनका उपयोग करके आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से बात होती है। बाकी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं शुरुआत तो वहीं से करूंगी। मैं हर इंडक्शन मीटिंग में बात करती हूँ, देखिए आप ग्रोन अप स्टूडेंट्स हैं, आप वेल अवेयर स्टूडेंट्स हैं, तभी आपने इग्नू में एडमिशन लिया है, तो आपके कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपकी है। हम आपको सहयोग करेंगे, पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इंडक्शन मीटिंग का भी यही पर्पस है। स्टडी सेंटर पर आपके जो कोऑर्डिनेटर्स, एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं, उनका भी यही प्रयास रहता है कि आप तक सारी जानकारी हम एडवांस में पहुंचा दें। लेकिन जब तक आप खुद सतर्क नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे, तो हो सकता है कि आपको जानकारी मिस कर दे। इसलिए जो हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आपको लिंक दिखाए हैं, जो वेबसाइट्स हमने आपको दिखाई हैं, आप उनको रेगुलरली विजिट कीजिएगा। सोशल मीडिया को आप फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको अलग से वेबसाइट खोल करके कुछ ना चेक करना पड़े। डे टू डे अपडेट्स जो रीजनल सेंटर की तरफ से जाते हैं, वो आप तक ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पर, ट्विटर पर, आपका टेलीग्राम चैनल पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। और सुमित जी, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन अभी ले लेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगेगा खत्म करने में, प्लीज वेट। अब कुछ प्रोग्राम्स में ऐसा हो सकता है कि कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स भी, हम थियोरी और असाइनमेंट्स की यहाँ बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ प्रोग्राम ऐसे भी, लाइक डीएनएचई प्रोग्राम है, वहां पर प्रोजेक्ट कंपोनेंट होता है। ये और भी कोई ऐसा पीजी डिप्लोमा या यूजी डिप्लोमा प्रोग्राम हो सकता है जहां पर प्रोजेक्ट कंपोनेंट हो या कोई दूसरा कंपोनेंट हो। जैसे कि काउंसलिंग का एक हमारा पीजी डिप्लोमा है, वहां पर एक सोशल वर्क में प्रैक्टिकम भी होता है। तो आपके प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से कोर्सेज रजिस्टर होते हैं, और उन कोर्सेज को पूरा करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी सारी जानकारी आपको प्रोग्राम गाइड में मिल जाएगी। यदि प्रोग्राम गाइड में वो पूरी जानकारी ना हो, तो उस पर्टिकुलर कोर्स कोड का जो स्टडी मटेरियल होगा, जो कि आप ई ज्ञान संगम पर जाते हैं, उसके माध्यम से आप ई ज्ञान कोश पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप उसको देख लीजिएगा, और आपके प्रोग्राम को कैसे पूरा करना है, उसमें आपको क्या क्या, कौन कौन से कंपोनेंट पूरे करने हैं, वहां से चेक करके आप उसको पूरा कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की। हम हर इंडक्शन मीटिंग में, हर प्लेटफॉर्म पर हम अपने विद्यार्थियों को बता देते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि देखिए हमारे जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप उन्हीं को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है अपनी वेबसाइट की, अपने सोशल मीडिया चैनल्स की, लेकिन इंटरनेट के जमाने में कोई भी फ्री है किसी भी नाम से कोई चैनल क्रिएट करने के लिए, कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए, या कोई टेलीग्राम चैनल क्रिएट करने के लिए। अब आरसी नोएडा के नाम से यदि कोई दूसरा टेलीग्राम चैनल है, उसकी जिम्मेदारी आरसी नोएडा नहीं ले सकता। वहां पर क्या इन्फॉर्मेशन पोस्ट हो रही है, हम उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे पास कोई एडमिन कंट्रोल नहीं है। यूट्यूब किसी ने किसी नाम से बना रखा है यूट्यूब चैनल, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बहुत बार देखने में आता है कि जो यूनिवर्सिटी से बाहर के लोग ने कोई चैनल्स क्रिएट कर रखे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रखे हैं जो यूनिवर्सिटी के कंट्रोल के बाहर है। यदि आप वहां से कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उससे आप मिसगाइड होते हैं, देन यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है, मैं फिर से आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ
कि देखिए आप जो इग्नू डोमेन की वेबसाइट्स हैं rcnoida.ignu.ac.in या हमारी हेडक्वार्टर की वेबसाइट है ignu.ac.in या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनके लिंक डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर दिए हुए हैं, आप प्लीज उन्हीं पर दी गई इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक मानिएगा। उसके अलावा आपको कौन कहाँ से क्या कह रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारे लिए ले पाना मुश्किल होगा। कई बार विद्यार्थी आते हैं, रिपोर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारे डोमेन के बाहर है तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। हम आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बी अ लिटिल अवेयर, be conscious and retrieve the information only from the authentic sources of information that are being operated by the university. एक लास्ट बात मैं कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगी कि जितनी भी जो फी के बारे में बात होती है, देखिए आपको एडमिशन फी पे करना होता है, वो आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है या यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। आपको एग्जामिनेशन फी देनी होती है, वो भी मेंशन है, आपको देनी होती है। आपको स्टडी मटेरियल के लिए किसी को कोई फीस नहीं देनी है, कहीं कोई फीस होती नहीं है। आपको असाइनमेंट्स के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। आपको स्टडी सेंटर चेंज यदि कराना है उसकी कोई फीस नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो फीस आपको जब जब पे करनी होती है वो आपको प्रोस्पेक्टस में साफ तौर पर कब देनी है, कितनी देनी है, वो साफ तौर पर लिखी हुई होगी। उसके अलावा यदि आपसे कोई फी के बारे में बात करता है, पैसे लेता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा क्या उस फी के बारे में कहीं जिक्र किया गया है, प्रोस्पेक्टस में जिक्र किया गया है, कहीं इग्नू की वेबसाइट पर जिक्र किया गया है। अगर ऐसा कहीं पर है तो ही आप उसे पे करेंगे, अदरवाइज आप उसको पे नहीं करेंगे। और आपको सचेत रहना होगा इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि आप कहाँ पर किससे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल। Our jurisdiction, जब मैडम ने बताया, we have our jurisdiction in the entire Western UP, also in East Delhi. इतना बड़ा jurisdiction है, इतने सारे हमारे स्टडी सेंटर्स की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं कि वहां से आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको मिसगाइड नहीं करेगा या आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। लेकिन कई बार विद्यार्थी जो एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं कुछ लालचवश। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि कई बार विद्यार्थियों को कोई मैसेज कोई करते हैं या किसी प्लेटफॉर्म से देखते हैं कि आपको बने बनाए असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। भाई वो जिम्मेदारी आपकी है कि असाइनमेंट आपको बनाने हैं, पढ़ना आपको है, कार्यक्रम आपको पूरा करना है। एक्सटर्नल सोर्स का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप किसी से पैसे दे करके असाइनमेंट बनवा भी लेंगे तो आपके किस काम की? भले ही आपने ले भी लिया, जमा कर भी दिया, वो टीचर के सामने आएगा, टीचर उसको काट देगा, आपको 0 मार्क्स दे देगा। तो ऐसे असाइनमेंट लेकर के जमा करने का भी कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। आपको खुद से सब कुछ करना है। जितनी ट्रांसपेरेंसी इग्नू में है शायद ही आपको उतनी ट्रांसपेरेंसी कहीं मिलेगी। हर चीज आपको रिटर्न में मिल जाएगी, हम आपको यहाँ से बता रहे हैं। बस आप टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा और थोड़ा सा सतर्क रह करके अपने कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी और अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Anjana. Thank you so much for giving a complete insight into the whole academic journey in a very concise and precise manner. Now I open up this session for question answers. I am opening up the question answer block. If there are any students, they can ask the questions. आप अपने सवाल जो क्वेरी है, और रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिपीटेड क्वेरीज ना डालें, एक क्वेरी डालिए और उसका प्लीज आप लोग वेट कीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन डालिएगा। My colleagues, are you able to see the questions? किसी ने लिखा है कि असाइनमेंट किस शीट पर लिखने होते हैं, शीट लाइन शीट या प्लेन शीट? आपको कोई भी डिसेंट स्टेशनरी आप ले सकते हैं, चाहे वो A4 शीट है या फिर लाइन शीट है, और उसको उसमें आप अपना असाइनमेंट लिखिए। कवर पेज शायद आपने सुना नहीं, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है। सत्येंद्र कुशवाहा जी ने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि कवर पेज में आपको अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना प्रोग्राम, अपना पोस्ट कोड और अपना ईमेल आईडी, डेट, ये सारी चीजें लिख के कवर पेज डाल के और उसके बाद फिर इसको इंक्लूड करके आपको ये अपने स्टडी सेंटर पे, स्टडी सेंटर कोड वो भी आपको डालना होगा। आप इसको अपने स्टडी सेंटर पे जमा कीजिए। सो दैट इज व्हाट I am a diploma student of online program. How can I connect to my counselor? Can you please repeat once again? Well, we have already told you that you of online program means, but still, you know, we will be having counseling schedules
and these counseling schedules will be uploaded in the IGNOU RC Noida website. You can have a look at those counseling schedules. As and when we receive it from our study centers, we'll be uploading them. Accordingly, you can have a look and get connected or log into those video sessions, those online sessions of which are relevant for your course. When I'm checking my MPDD status, it is showing an error of enrollment number not found. I'm waiting for the hard copies. I paid for that. What to do? Well, you know, your assignment, your admissions have all got recently confirmed. So I would always request you to please wait for some time for the study material to be received at your end, because the study material dispatch is going on in full swing from RC Noida also, and also from IGNOU headquarters. So maybe you could just wait for some time. Maybe the database has not yet got updated. It's not about assignment kitne page ka jama karna. It's not about counting the number of pages that you are submitting for your assignments. It's basically the quality, and you would also see that the assignment questions, they also have the word limit given there. So you please see the word limit. आप word limit देखिए, questions के आगे word limit दिया हुआ होता है. उस word limit के according आप अपना answer बनाइए और बना के अपने study center में जमा कीजिए. Study center name is mentioned in ID card. Now, is this a question or what? We don't understand. What of the programs in DNHE OL program? Again, this question is not clear. Assignment submission last date or submission kahan hoga? Again, see, this is a repeated question. Assignments are to be submitted at your study center. Last date for all of you is 31st March. Ma'am and sir, please told bachelor's program. No, this particular, I think anonymous, you were also there in the previous session. I think he was the same this thing. He was also there in the previous session. No, we don't need to discuss about bachelor's programs here. Did not receive any study material. Please wait for some time. Please wait for some time. As I said, they are under the this thing. They're under dispatch at present. For internship, you're saying 1 month long internship, you want to know the procedure. Well, I would always request you, there's somebody called ABK. I would request you to please send your query by email. Unable to copy your open URLs you have shared with us. Well, those URLs are also there in the induction meeting. This video we will be uploading in the YouTube channel. You can have a look at it again, and then you can take down the URLs from there. Otherwise, also these URLs are all there in our regional center website. These are working as such, ma'am, because directly they're all functional right now. These are they're all functional. They're all functional URLs. They are not. It's not that they are defunct. They are not defunct. These are all functional URLs. Somebody is saying, I am joining this meeting in the last minute, so miss this. Can this induction scheduled again? No, we'll not have Aarti Sharma. We'll not have the induction scheduled again, because we've already had series of 4 induction meeting in the last fortnight. But yes, the recording, this induction meeting is being recorded, and this recording will be available in the RC Noida YouTube channel. You can go and access that after a day or two. Anjana, can you take the next one? Janta Vedic College Barot Study Center से हम DDT में एडमिशन लिया है, क्लास कब से कैसे पता करें? इसके लिए पहले ही हमने बता दिया है कि जो काउंसलिंग शेड्यूल जैसे ये डाटा मैं भेज चुका हूँ सेंटर को, और वहाँ पर राकेश जी कोऑर्डिनेटर हैं. ये स्टूडेंट वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे क्लास के बारे में. आप डायरेक्टली स्टडी सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि संजय जी ने कहा, या फिर आप थोड़ा वेट कर लीजिए. काउंसलिंग शेड्यूल जैसे ही रीजनल सेंटर आएगा, वो हमारी वेबसाइट पर अंडर काउंसलिंग शेड्यूल्स अपलोड कर दिया जाएगा. आप वहां से देख करके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. एनोनिमस है, वो कह रहे हैं कि विल देयर बी एनी काउंसलिंग सेशंस शेड्यूल्ड लेटर ऑन फॉर प्रैक्टिकल्स. प्रोग्राम आप मेंशन नहीं कर रहे हैं, कह पाना मुश्किल है. कौन से प्रैक्टिकल की आप बात कर रहे हैं? No, please, I would request this person, whoever this is, anonymous. You've been logging in at every induction meeting. So I would request you to please put your name and your enrollment number in the program. Then only we'll be able to respond to your question. I've registered in IGNOU RC. Can I go for RC Delhi for support? No, you cannot.
if you're registered at RC Noida, there's somebody called Mr. Dinesh P. If you're registered in RC Noida, you will be getting all your student support from RC Noida and its LSC wherever you are allocated. Stuti Agarwal, I have only received half. For do next, you please wait for some time. You will receive your study material. As I said, study material is under dispatch. Name of study center not mentioned in the ID card. You can look into the your registration detail, online registration detail, which is available in the IGNOU website. This is again getting repeated, Anjana. I think Sumit Kumar, Janta Vedic. You don't need to take this. Exam medium is Hindi. Kya assignment English? Yes, you can make that. But Kritika Agarwal, we would always advise you that if you have taken the exam medium writing in Hindi, we would expect you to write your assignments also in Hindi and not in English, because that is for you. It will be also you'll be able to practice writing your answers. Otherwise, you write your answers now in English. And then all of a sudden in the exam, if you start writing in Hindi, you might not be able to do well in your exams. You might not be able to perform well. So if your medium is Hindi, please write your assignments also in Hindi. Varsha Mehra ma'am question पूछ रही है. She has taken admission in DEC diploma program. वो एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं कि ODL students एग्जाम स्टडी सेंटर्स में ही होएगा या जो अभी अपडेट्स हुआ है स्टडी सेंटर्स. एक तो क्वेश्चंस हमारे विद्यार्थी इस तरह से लिखते हैं कि उनको समझने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है उनका पूछना ये है कि जो उनका स्टडी सेंटर है क्या उनका एग्जाम भी वहीं पर होगा. तो कोई जरूरी नहीं है कि जहां आपका एग्जाम सेंटर है, जो स्टडी सेंटर है वहीं एग्जाम होगा. एग्जाम आप कहीं भी दे सकते हैं. एग्जाम सेंटर कौन कौन से बनते हैं वो आप जब एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे मार्च में, तब आपको उस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा कि एग्जाम सेंटर हमारे कहाँ पर बन रहे हैं. उसमें जो भी आपको नजदीक लगता है, जो जहां भी आपको सहूलियत होती है, आप उसको ऑप्ट करके वहां पे एग्जाम दे सकते हैं. अब क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया आपका कौन सा स्टडी सेंटर है, तो यहाँ से ये बता पाना कि वो हमारा एग्जाम सेंटर होता है या नहीं होता है, वो हमारे लिए मुश्किल है. When will I, there's somebody called Ali Anwar. When will I get my assignments? I don't understand what you mean by when will I get my assignment. Assignment question papers are available in the IGNOU website in the download section. You can go and you can go to that link and download your assignments. I mean the programs for which you are enrolled. You can download your assignments from there and then solve your questions. This again question is repeated. Re-registration सबको करना है. No, if you are a diploma, PG diploma student, you don't, re-registration is not applicable for you. ये तो हम लोगों ने induction meeting के time में भी आपको बताया था. Provided he is not a student of PGDCA or some semester-based PG diploma program. Yeah, if we don't know, Rashmi Sharma, what program you are studying in. If you are in a semester-based program, or for example, if you are in a semester-based program of MP, PG diploma MP, there also in management program, suppose you've taken an admission in management program, PG diploma, there you might have to re-register, but we don't know your program. So इसलिए रश्मि जी हम नहीं बता पाएंगे आपको किस re-registration के बारे में बात कर रहे हैं. Is there any practical exam of DNHUL program? Well, Ariba Aziz, I would request you to please read your program guide first. इस तरह से इंडिविजुअल क्वेश्चंस हम बता पाएंगे. हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि पहले आप अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ लीजिए. प्रोग्राम गाइड के पढ़ने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, क्योंकि जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम है या नहीं, कब होगा प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या हमें करना होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीजें अरीबा जी आपको प्रोग्राम गाइड में मिल जाएगा. आप प्लीज पहले प्रोग्राम गाइड देख लीजिए. Somil Upadhyay, can we have a video recording? Well, I think you didn't see. We have already told you that there will be a video recording of this particular induction meeting and also the induction meeting that we had last week. Those are already uploaded in the YouTube channel of RC Noida. So you can go and access that. ABK, you're saying, ma'am, I did email the regional center. Now about what? We have no idea. Email was unanswered. That is not possible. And our course coordinator was unreached. No. This is not possible. You send the mail again. Give complete details. Anonymous, no, we refuse to answer your queries because we cannot answer. Will be shared on the website itself. No, you please give your name, your program, your enrollment number. Then only we will reply to your answers, to your queries.
What is the procedure for changing regional center? You just need to, Rafiq, you're saying what is the procedure for changing regional center? You give your application. संजय जी ने ऑलरेडी इसके बारे में बताया, शायद आपने सुना है या नहीं सुना, हमें नहीं मालूम. आपको ईमेल भेजना होगा गिविंग कंप्लीट डिटेल्स एंड आल्सो रीजन व्हाई यू वांट टू चेंज योर आरसी एंड आल्सो योर एससी एंड if copy of ID card. Yes, and a copy of your iCard. And if in case your program involves any kind of practical component, then you would need to get NOC from the RC where you want to go. I think now the questions are all getting repeated. We can stop it now. Okay, we can wind up today. Is it okay with all of you? Yes. So the questions are all getting repeated now. Now Rashmi is writing her program is diploma in DECE. Since you are a DECE student, you need not to re-register. आपके प्रोग्राम में re-registration नहीं होता है. Re-registration सिर्फ annual based programs जिनका duration एक साल से या ज्यादा होता है. डिग्री प्रोग्राम्स में जैसे होता है कि एक साल से ज्यादा का प्रोग्राम है या सेमेस्टर में एक सेमेस्टर से ज्यादा का आपका प्रोग्राम है, तो री-रजिस्ट्रेशन करना होता है. क्योंकि आपका डिप्लोमा प्रोग्राम है, एक ही साल का है, तो इसमें कोई री-रजिस्ट्रेशन नहीं है. और बबीता बार बार लिख रही कि आईडी कार्ड पे स्टडी सेंटर मेंशन नहीं है. स्टडी सेंटर का मेंशन उसमें होने की जरूरत भी नहीं है. आपको स्टडी सेंटर अपना जानना है, आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस से देख लीजिए. संजय जी ने ऑलरेडी बता दिया है. पीजीडीएस के स्टूडेंट है, असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट जानना चाहते हैं. कई बार बताया जा चुका है, फिर से रिपीट कर रहे हैं. March 31st would be the last date for students admitted in July 2025 session in diploma program. संजय जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज. डीडीटी के स्टूडेंट हैं, पूछ रहे हैं कि ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है. तो ये सेमेस्टर बेस्ड नहीं है, ये ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है. आपको रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना है. और एक अभी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वो डीडीटी जहाँ प्रोग्राम हमें मिला है बरोत में, तो उन कोऑर्डिनेटर का नंबर हमें मिल जाए, तो हम उसको यहाँ नहीं दे सकते. आप हमें मेल भेज दीजिए, हम उसमें आपको भेज देंगे, उनका नंबर भेज देंगे. So I think we can close the session now. If you all Yes, like, we can. we have, dear students, we have tried to give maximum information possible during the limited time of 1.5 hours, and also we have tried to explain as quickly and in whatever simple language to the queries that you have raised in the question answer boxes. We hope you found them useful. Further to this, if you want to refer to this video, you can, as I've already told, I think this is the 5th time I'm telling all of you, you can all access the induction videos which will be available at the IGNOU RC Noida YouTube channels. Thank you so much, all of you, for joining today in this induction meeting. We hope you found it useful, and also we hope that you will have a very successful academic journey with IGNOU RC Noida and IGNOU as a whole, and the objective behind which you have enrolled in these whatever respective program, those objectives are achieved and you have a very successful life ahead. I would like to thank my colleague, Dr. Anjana, for a very insightful lecture. I would also like to thank our colleague Sanjay ji and Khushwaha ji, Satyendra Khushwaha ji, for providing useful information, for giving demo to the students of the digital resources, and Sanjay ji for giving demo to the various useful utilities that are available in the IGNOU website and the students are required to do further after taking admission. Thank you, all of you. Thank you, all the students joining today in this induction meeting. And I, on behalf of all the officials and staff of RC Noida, we wish you all the best, all the success, and a very happy and healthy life ahead. Thank you so much, and God bless you. Thank you. Namaskar.